Hello friends, welcome to Placement Updates. This is Anupam. In this video, we will see my Cognizant interview experience. So, how was my Cognizant interview experience? So, let's go to the next slide for understanding it. If you are new to my channel, then please don't forget to like, share and subscribe. So, let's start the video. So, first of all, understand the selection procedure of Cognizant. So, Cognizant conducts 3 rounds for their hiring process. So, first round is online test, second round is technical interview, third round is HR round. And we can see all rounds are elimination round. Means if you are rejected in any of this round, then you won't be able to get the offer letter. So we will understand each round in a detail, what is asked in that round and what is its pattern. We will discuss all the things in upcoming slide. So let's go to the next slide. So this is the selection mail from Cognizant. You will receive this mail from Cognizant once you get selected in it. So let's come to the next slide. This slide contains information about the online assessment of Cognizant, which is conducted on MCAT platform. So let's understand it. So first, so it contains MCQ questions. MCQ questions are based on aptitude, logical reasoning, reading comprehension. So I don't think that it is required to explain, not required to explain what is aptitude, logical reasoning. You all know very well. It's okay. So let's come to the automata fix. So what is automata fix? Yeah, so it's important and automata fix is only asked in Cognizant. So let's understand what is it. So in automata fix, they will give us a simple code with its output, and we have to fill in the blanks. For example, here we have a code, and here there is a fill in the blank. So we have to fill this fill in the blank. So what logic should I write here to get this kind of input and output? So here we have to write our logic. So I think you all have got this point. So on coming to the platform, so Cognizant uses MCAT platform for conducting their assessment. On and note that nature of exam is adaptive. Adaptive means difficulty level increases or decreases based on the previous answer of our question. For example, previous question I have answered correct, so next question will be simple. And if I will provide correct answer of previous question, then the next question which I am going to get, it will be a little bit harder. And one more important thing is that harder question are having more marks than the simple question. In this slide we will see MCAT एग्जाम प्रिकॉशन. तो ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अपन ने इसको ध्यान से नहीं समझा तो अपन कॉग्निजेंट में ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू देने से पहले ही. बिकॉज मेरे कॉलेज में जब हुआ था तो काफी सारे मेरे दोस्त मीन्स एक्चुअली 3 दोस्त मेरे रिजेक्ट हो गए थे टेक्निकल देने से पहले ही. मतलब बिकॉज इन्होंने इन फर्स्ट 3 स्टेप में कुछ गड़बड़ कर दी थी. ठीक है, तो क्या वो स्टेप से देख लेते हैं. So your face should be visible in webcam. मतलब जो अपना चेहरा है कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब पीछे सूरज है, अपना मुंह एकदम डार्क दिख रहा है, कुछ आ नहीं रहा, ऐसा नहीं. अगर ऐसा रहता है तो फिर टेक्निकल देने से पहले ही वो लोग बोल देंगे जाओ भाई. बैकग्राउंड शुड बी चेंज बैकग्राउंड शुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट. मीन्स अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अपन एक बार जहाँ बैठ गए पेपर देने, तो वहीं बैठ के पूरा देना है. यानी कि लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, कभी सीढ़ी पे कभी क्लास पे, तो फिर उसमें अपन को मतलब टेक्निकल में दिक्कत देते हो. और नेवर ट्राई टू डू ओपन अनदर टैब. फॉर एग्जांपल अपन टेस्ट दे रहे हैं तो कभी भी 2 टैब मत खोलना. अगर आपने कोशिश करी तो आपका टेस्ट सबमिट भी हो सकता है, और अगर आप लकी रहे तो आपको वार्निंग मिलेगी. बट देयर इज अ चांसेस दैट अगर आप खोलते हो तो आपका टेस्ट भी सबमिट हो सकता है. तो दूसरा टैब तो खोलने की कोशिश भी मत करना, बिकॉज एमकेट ये सब कैप्चर कर लेता है. और अपने पास 2 लोग भी कभी भी मत बिठाना, बिकॉज कैमरे में अगर 2 फेस डिटेक्ट होते हैं तो उसका प्रोग्राम मतलब एमकेट का जो मशीन लर्निंग वाला प्रोग्राम है वो डिटेक्ट कर लेता है और वो बता देता है कि देयर आर 2% डिटेक्टेड इन द कैमरा. सो मेक श्योर दैट आप ही दिख रहे हो, और आपके ऐसा नहीं कि पीछे कोई हो. अगर आपके पीछे भी कोई होता है तो उसका भी फेस डिटेक्ट कर लेगा और आपको वार्निंग देगा. तो आई थिंक 2 वार्निंग मिलती है. अगर आप 2 वार्निंग में नहीं सुधरे तो आपका बंद हो जाएगा. एक्चुअली मेरे कॉलेज में हो क्या रहा था,
फर्स्ट बेंच पे एक बंदा दे रहा था और पीछे एक और बंदा खड़ा हो गया था, तो दो फेसेस डिटेक्ट हो गए थे, तो उसको एक बार वार्निंग आ गई थी। तो आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसी जगह बैठना जहाँ पीछे मतलब दीवार हो तो ठीक है, या ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि लोग घूम फिर रहे हो और आ रहे हैं तो 2-3 फेस डिटेक्ट हो गए तो यार आप फिर डेंजर में आ सकते हो। और ये जो एमकेट वाला प्लेटफॉर्म है, जो हर रेगुलर इंटरवल पे अपना स्नैपशॉट लेता है, तो वो सारे स्नैपशॉट इंटरव्यूअर चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। वो चेक करते हैं कि दो लोग तो नहीं थे, अब दो लोग तो नहीं थे, अगर एक भी फेस नहीं हो उसमें तो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज पता ही नहीं चलता कि टेस्ट किसने दिया है। एक भाई ने अपना एग्जाम कैसे दिया था, लैपटॉप मतलब कैमरे को पूरा ऊपर ही कर दिया था, तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, उसके सिर के ऊपर कैमरे का फोकस था, तो उसको टेक्निकल में यूं ही रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज पता ही नहीं चला ना कि एग्जाम किसने दिया है। तो चेक कर लेना कि कैमरे में आप अपना फेस देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ऑन कमिंग टू द क्वेश्चन, कैन वी डू चीटिंग ऑन एमकेट एग्जाम? तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था, बट मेरे जूनियर्स मुझसे पूछते हैं क्या भैया हम चीटिंग कर सकते एग्जाम में, तो उनको अच्छे से समझाना पड़ता है कि तुम चीटिंग करना चाहते हो तो कर तो सकते हो, बट उसी कंप्यूटर में मत करना, मतलब डबल टैब मत खोलना, सब समझाना पड़ता है उनको। मतलब अगर आप चीटिंग करना चाहते हो तो यस यू कैन डू बाय डिफरेंट डिवाइसेस, बट अपन को अपनी समझदारी से करना है। आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड यू टू डू बाय योरसेल्फ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। So tips for technical interview question. So what are the tips for technical interview question? So first and most important is make good resume for interview. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि गुड रिज्यूमे बनाओ अपने इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिज्यूमे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लिख दो, जिसका अपने को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो भी लिख दो, नहीं, ये सब नहीं। अपन को सिर्फ वही सब स्किल्स लैंग्वेजेस लिखनी है जिसमें अपन परफेक्ट हो, जिसमें अपन कोड लिखने लायक हो, मतलब अपने को हैंड्स ऑन अच्छा सा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपन ने थोड़ा सा पाइथन पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का मुल्का नॉलेज है, अपन ने लिख दिया पाइथन, अब वो बोल देगा पाइथन चलो भाई इनहेरिटेंस वाला एक प्रोग्राम बना के दे दो, और अपन को नहीं आता है, तो फिर वहां पे बहुत बैड इंप्रेशन बनता है। तो वही लिखो जिसमें अपने को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं लिखनी, 4 टेक्नोलॉजी लिखो, लेकिन चारों अपने को आना चाहिए। 2 लैंग्वेज लिखो, दोनों के अपन मास्टर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्स 90% क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम आवर रिज्यूमे। तो ये 100% करेक्ट बात है, मैंने बहुत सारी कंपनी के इंटरव्यू दिए हैं और 90% जो क्वेश्चन है ना वो रिज्यूमे से ही पूछे जाते हैं। मतलब अपन ने रिज्यूमे जो में जोन सी लैंग्वेज लिखी है वही पूछा जाएगा, और मतलब जोन सा प्रोजेक्ट लिखा है उसी के बारे में पूछा जाएगा। मतलब 90% क्वेश्चन पूरा रिज्यूमे में से ही पूछा जाता है। इंटरव्यूअर रिज्यूमे हाथ में लेकर उसमें से ही देख देख के पूछता है। और थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर एसक्यूएल वेरी वेल। मतलब कि एसक्यूएल को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सभी कंपनियां पूछती है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल। मतलब बहुत सी कंपनियां पूछती है, डेटाबेस वाली कंपनी आएगी तो पूछेगी, प्रोग्रामिंग वाली आएगी तो वो भी एसक्यूएल पूछेगी, क्योंकि बैकएंड में तो प्रोग्राम एसक्यूएल ही रहता है, तो एसक्यूएल हर जगह है। So here I have written SQL important topics which are different kinds of query of SQL, different kinds of join, what is normalization, different kinds of key, ये सब इनमें डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज के बारे में, मतलब कि प्राइमरी क्या है, की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, यूनिक की क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। वो लोग कंफ्यूज करते हैं की के ऊपर, क्योंकि की बहुत सारी होती है ना, तो वो लोग इसमें कंफ्यूज करना चाहते हैं कि अच्छा इसका काम ये है तो इसका काम बताओ भाई, इसका काम ये तो ये क्यों बनाई, ऐसे करके कंफ्यूज करते हैं। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। या सो ऑन कमिंग टू द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माय जूनियर दैट व्हाट वाज आस्क्ड टू मी। मतलब मेरे जूनियर अधिकतर मुझसे पूछते हैं कि भैया आपसे क्या पूछा था ये बताओ। तो मैं इसमें वो भी शेयर करने वाला हूँ कि मुझसे क्या पूछा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको बताया मेरा जो भी प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा पूछा कि अच्छा बताओ कौन सी लैंग्वेज यूज करी, ये उसका वर्जन बताओ। फिर बोला कौन सा डेटाबेस यूज करा, मैंने बोला माइस्क्यूएल, तो उसका वर्जन बताओ। फिर
और भी चीजें पूछी कि हाँ, पूछा कि तुमको क्या दिक्कत आई, मतलब और भी ऐसे उन्होंने पूछा। तो प्रोजेक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से 90% कंपनियों में प्रोजेक्ट ही पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में। मीन्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ कोई भी पूछता है, उसके बाद डायरेक्ट स्विच करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, भाई भाई बताओ प्रोजेक्ट क्या बना है, तो वो प्रोजेक्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद मेरे से पूछा गया था कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, मतलब कि मेरे को बोला था कि एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें से तुम सेकंड हाईएस्ट मार्क्स निकालो। तो ये इसकी क्वेरी लिखनी थी। और मेरे को एक कोडिंग का क्वेश्चन भी दिया था, प्रोग्राम फॉर काउंटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, मतलब इसमें मेरे को इनपुट दिया था एप्पल और आउटपुट था 1। मीन्स डुप्लीकेट मतलब अपने को काउंट करना था कि डुप्लीकेट कैरेक्टर कितने हैं, तो एक कैरेक्टर है डुप्लीकेट, तो आउटपुट ऐसे 1। तो ये वाला प्रोग्राम बनाने को दिया था, तो मैंने बनाया था ये वाला। तो सम क्वेश्चन ऑन वाइल्ड कार्ड, हाँ। और उसके बाद जो डेटाबेस चालू हुआ, तो डेटाबेस वाले पे काफी सारे क्वेश्चन थे, मतलब वाइल्ड कार्ड के ऊपर 5-6 क्वेश्चन पूछे थे। मीन्स वाइल्ड कार्ड होते हैं ना, जिसमें अपन पता करते हैं कि फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद एस, हुज नेम एंड्स विद ए, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे, तो मतलब कॉम्बिनेशन लगा लगा के पूछे गए थे। तो ये वाइल्ड कार्ड वाला कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, टफ है, ट्रिकी बोल सकते हैं अपन इसको, बिकॉज इसमें अच्छे अच्छे मतलब जो धुरंधर रहते हैं ना, वो भी गलती कर जाते हैं। वो इंटरव्यूअर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, मतलब पूछते ये वाला क्या, हाउ मच यू रेट योरसेल्फ इन ए स्केल आउट ऑफ 10, मतलब कि अपने आप को तुम आउट ऑफ मतलब अपने आप को 10 में से कितना रेट करते हो। अब इसका आंसर जो धुरंधर रहते अपने आप को बहुत बड़ा क्वेश्चन समझते, वो जाके बोल देते भैया 10, 10 आउट ऑफ 10। अब इंटरव्यूअर बोलता है वाह तो सब आता है, वो एक कठिन वाला क्वेश्चन उठाता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप का दे देता है, बोलता है कर भाई। और डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ले लॉजिक समझा भाई। तब डायनामिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन तो जल्दी अपन हाथों हाथ तो बना नहीं सकते 10-15 मिनट में, तो 10 में 10 कभी मत देना। और दूसरा रीजन ये कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ लर्निंग एंड वी आर फ्रेशर, so we cannot say that I know everything about this language, because हर लैंग्वेज पे किस किस लेवल पे काम हो रहा है अपन ने अभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है, बिकॉज वी आर फ्रेशर। तो कभी भी 10 आउट ऑफ 10 मत बोल देना, बिकॉज जैसे ही आपने 10 आउट ऑफ 10 बोला, इंटरव्यूअर कठिन वाला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे हाईएस्ट लेवल वाला क्वेश्चन पूछेगा जो उसके पास होगा टॉपेस्ट वाला। तो 10 मत बोलना, थोड़ा कम बोलना, बिकॉज उससे उसको लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा अपने आप को मतलब मानता है कि हाँ मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है। तो ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, या सो एचआर इंटरव्यू, तो इन द एचआर इंटरव्यू दे ओनली चेक फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब एचआर में बस ये चेक करते कि अपन अपने थॉट्स को उनके सामने रख पा रहे हैं या नहीं। मतलब मैंने मेरे दोस्तों से पूछा था, उन लोगों से मतलब थोड़ा बहुत बातचीत करके देख रहे थे वो लोग, बट जब मैं गया इंटरव्यू देने तो मुझसे ये सब कुछ नहीं पूछा था, मेरे को डायरेक्ट पूछा था एक ही क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू जॉइन कॉग्निजेंट, और बोले कि ठीक है यू कैन गो। बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज जब मैं टेक्निकल इंटरव्यू दे रहा था तो लगभग मैंने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, और मतलब इंटरव्यूअर भी खुश लग रहा था मेरे आंसर सुन के। तो मेरे को लग रहा है कि उसने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिख दिया होगा, इसलिए मेरे को एचआर ने मतलब एक ही क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू मी अगर अपना टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा जाता है तो वो एचआर में ज्यादा फोकस नहीं करते, बोलते चलो ठीक है, अगर एचआर मतलब कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी प्लस माइनस भी होगी तो चलेगा, ठीक है। तो टेक्निकल अच्छा करने पे फोकस करो, बिकॉज टेक्निकल अगर अपना अच्छा है तो एचआर में थोड़ा कम भी रहे तो चल जाता है, बट अपना टेक्निकल एवरेज है तो फिर एचआर में परेशान करते हैं, बिकॉज एचआर में वो फिर बोलते हैं चलो इस बोलेंगे चलो मशीन लर्निंग के ऊपर बोलो 5 मिनट, फिर वो चेक करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपन बोल पा रहे हैं कि नहीं, तो इस टाइप का रहता है। So that was all about Cognizant interview experience. So if you need interview experience about some other company, then please comment it. I will connect with my friend who is placed in that particular company and I will bring its video as well. So thank you friends for watching. Do subscribe our channel for more updates.